we are having one is exponential growth model. So exponential growth model, exponential growth model, EGM, in short form. So I am having x dot is proportional to kx. What is k? K is the growth rate. The solution is given by x equal to x0 e to the power kt. हाँ, x equal to x0 e to the power kt. बताओ इसमें टाइम कहां से आ गया? x डॉट प्रोपोर्शनल टू kx में इसमें एक इनिशियल कंडीशन भी दे रखी होती है हमें. इनिशियल कंडीशन x equal to x0 at t equal to 0. x equal to x0 at t equal to 0, है ना. और ये जो x डॉट है इसमें भी t इन्वॉल्व है. दिस x डॉट इज बेसिकली dx by dt. ठीक है, तो कितने पैरामीटर हैं आपके पास? एक टाइम पैरामीटर है, एक वैल्यू है, एक इनिशियल वैल्यू है, एक ग्रोथ रेट है. नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है. नाउ सेकंड मॉडल, है ना, दिस मॉडल वी हैव स्टडीड एंड वी हैव डिराइव्ड. आई एम जस्ट रिवाइजिंग. द सेकंड मॉडल इज एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल. सो दैट इज EDM. So only the change is, here x dot proportional to kx and here x dot proportional to minus kx. ठीक है. So the solution for this is x equal to x0 e to the power minus kt. This is the solution. ठीक है. Two models we have studied. Now I am coming to third model. So what is the name of the third model? Modified exponential growth model. So third model is modified exponential growth model. ठीक है. तो अब इसके लिए क्या कंडीशन है? x dot is proportional to growth rate is k, कैपिटल X माइनस X. अब यहाँ पे कैपिटल एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है. इस मॉडल में कैपिटल X क्या है? एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है. मतलब हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया है इस एक्स्ट्रा पैरामीटर की हेल्प से. तो ये जो एक्स्ट्रा पैरामीटर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल X इज द नंबर ऑफ पर्सन्स or people who have buy the product, who have number of persons who can buy the product or who might buy the product. Might buy the product मतलब ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, है ना. मार्केट लिमिट है एक तरह की. एंड स्मॉल x इज number of persons who have buy the product, है ना, जो प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं. तो ग्रोथ रेट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल X मींस who can buy and small x who have buy, है ना. इतने लोग के खरीदने की उम्मीद है, इतने लोग खरीद चुके हैं. तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है हमारा ग्रोथ रेट, है ना. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को हमने इस तरह से मॉडिफाई किया. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन अभी कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, है ना. तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उसको जरा सा देखिएगा. व्हाट आई विल डू, x डॉट कैन बी रिटन एज dx by dt. It is not proportional, it is equal because constant I have applied, है ना. पहले भी वाले केसेस में it is equal, है ना. यदि इक्वल नहीं लगाऊंगा then I can write x dot proportional to x.
Similarly here it is equal. So x dot equal to k times x minus x. So dx by dt is k times capital X minus x. Rearranging the terms. So rearranging the terms, you will have, हाँ क्या वैल्यू मिलेगी बताओ जरा. आपको मिलेगी dx divided by k minus dx divided by x minus x equal to k times dt. It is the rearranging of the terms. Now I am taking integration both the sides. So this is the integration. What are the limits, for lower and upper limits for the time? So limits are 0 to t as usual. What are the lower and upper limits for the variable small x? है ना? So the limits are 0 to x. Limits are 0 to x. Correct. Now solve. So what is the integration of the left hand side? कौन बताएगा? Left hand side का integration क्या होगा? Integration of dx by x is given by log of x to the base e. ठीक है? तो यहां पर आप dx by x minus x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x minus x to the base e with a negative sign. है ना? Why negative sign? Because differentiation of x minus x. Differentiation of x minus x is given by -1. x का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, so it is 0 minus 1, it is -1. So it is multiplied by -1, so it is minus sign is here. So left hand side integration is clear. Now go to the right hand side integration. So k dt integration is kt, k is a constant. The limits on the right side is 0 to t. The limits on the left hand side is 0 to x. 0 to x. Now put the upper limit and put the lower limit. So you have minus log capital X minus x की जगह पे अपर लिमिट रखना है. So upper limit is x. ठीक है? माइनस हो गया, माइनस, बट देयर इज ए माइनस अगेन, सो माइनस माइनस प्लस, है ना? माइनस माइनस प्लस, सो इट इज लॉग ऑफ कैपिटल एक्स माइनस, put the lower limit 0 in place of x, so it is x minus 0. ठीक है? तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया. नाउ कम टू राइट हैंड साइड. सो पुट द अपर लिमिट kt minus put the lower limit k times 0, तो k into 0. ठीक है? यहां तक क्लियर है प्रत्युष? इज इट क्लियर? यस, है ना? तो अब इसको जरा सा आगे सॉल्व करते हैं. आगे सॉल्व करने से हमको क्या मिलने वाला है देखिएगा. आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ओवर हियर. अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा. It can be written as log of x divided by log of x minus log of x minus x, log of x, x minus 0 is x, equal to kt, equal to kt. Now log m minus log n is log m by n, so it is log of x divided by x minus x equal to kt. Correct? And base is e. So this can be written as capital X equal to x minus x e to the power kt. बताओ, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? x by x minus x is e to the power kt. So this is e to the power kt. ठीक है? तो अभी ये सॉल्यूशन जो आया, ये किसके फॉर्म में आया? कैपिटल x इक्वल टू समथिंग आया. हमें सॉल्यूशन चाहिए स्मॉल x इक्वल टू, है ना? तो स्मॉल x का कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? देखो, अभी इधर आप देखें कि हमने
मॉडिफाइड पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का सोल्यूशन क्या निकाला, एक्स स्मॉल एक्स के फॉर्म में इक्वल करके निकाला। स्मॉल एक्स ही तो चेंजेबल पैरामीटर है। सो स्मॉल एक्स इज द इक्वल टू इज द सोल्यूशन। नाउ हियर स्मॉल एक्स इज द सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें मॉडिफाइड ग्रोथ मॉडल में अभी लास्ट की कंडीशन क्या मिली है देखो, है ना। मॉडिफाइड ग्रोथ मॉडल में हमें मिला है दिस वैल्यू, ये तो मिला है, log of x by x minus x equal to kt. So I am writing here log of x by x minus x equal to kt, or I can write x by x minus x equal to e to the power kt, or I can write x minus x divided by capital X equal to e to the power minus kt. रिवर्स कर दिया मैंने, न्यूमरेटर पलट दिया मतलब, है ना, फ्रैक्शन को अपोजिट कर दिया। तो इधर चेंज किया तो इधर भी चेंज हो गया, सो इट इज e टू द पावर माइनस kt। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज x अपॉन x इज 1 माइनस स्मॉल x बाई कैपिटल X इज e टू द पावर माइनस kt, and I can write it x upon capital X equal to 1 minus e to the power minus kt. So small x equal to capital X 1 minus e to the power minus kt. This is the final solution. ये हमने लास्ट क्लास में पूरा नहीं किया था। Now this is the final solution for the modified growth model. It is the final solution for the growth model. X equal to के फॉर्म में solution आना चाहिए। अभी जो solution हमने यहाँ निकाल दिया था वो कैपिटल X equal to के फॉर्म में निकाला हुआ है ना, तो इट इज ज्यादा सुटेबल फॉर्म नहीं है। चीज सही है बट इट इज नॉट सो सुटेबल। सो इट हैज बीन कैलकुलेटेड इन दिस वे, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। सो दिस इज द मॉडिफाइड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो तीन मॉडल तो बिल्कुल क्लियर हो गए, तीनों के सोल्यूशन आपके पास हैं, है ना, तीनों के सोल्यूशन आपके पास है। देखो पहला सोल्यूशन ये है x इक्वल टू x0 e टू द पावर kt, दूसरा सोल्यूशन x equal to x0 e to the power minus kt, and the third solution is x equal to capital X 1 minus e to the power minus kt. So all the three solutions you have. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है प्रत्युष? ओके, अब हम लॉजिस्टिक मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज द फोर्थ मॉडल। ठीक है, तीनों मॉडल का सोल्यूशन क्लियर है? कभी कभी एग्जाम में पूछ के लिए भी आ जाता है कि करिए सोल्यूशन को, डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट्स लगानी है, इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व कर देना है। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो चलो एक बार दोहरा दीजिए सॉल्यूशंस, मैं जरा सा क्लियर कर देता हूं स्लाइड को। यस, प्रत्युष रिपीट कर दीजिए सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन। यस, फर्स्ट सॉल्यूशन लवकेश रिपीट करिए आप, लवकेश। What is the first solution for the exponential growth model? It is given by x equal to x0 e to the power kt. E to the power minus kt. Yes, minus kt. So this is the solution for the exponential decay model. Yes. Yes. What is this k? बताते जाइए. What is this k? The growth model. नहीं, it is not model. Growth rate. Sorry, rate. Sorry, model rate. Growth rate. Yes, it is growth rate. And what is x0? x0 क्या है? It is the initial value. Initial value. It is the initial value of the parameter. यदि आप population पे काम कर रहे हैं, then it is initial population. ठीक है? यदि आप किसी और किस पे इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं तो वहाँ इन्वेंट्री रिलेटेड हो जाएगा, whatever it is. Now come to the third model, that is exponential modified, है ना? That is modified exponential growth model. है ना, नाम तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है बट एक मॉडिफाइड वर्ड जुड़ गया उसके साथ। सर इसमें x नॉट की वैल्यू 0 ली गई है, बाकियों में नहीं ली गई। इनिशियल वैल्यू इसकी 0 ही रहती है। कौन से वाले केस में? सर लास्ट वाला मॉडिफाइड। हाँ देखो, मॉडिफाइड मॉडल में हमारा कंसंट्रेशन क्या रहता है कि हमारे पास एक मार्केट लिमिट होती है, उसको हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्स।
है ना, मार्केट लिमिट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो कैपिटल एक्स होती है। अब जब शुरू में प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी सेल कितनी होती है, 0 ही तो रहती है शुरू में, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू शुरू में कितनी रहती है, 0। जी और सर, जैसे ठीक जैसे है। हाँ, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाती है तो फिर ये एक्स को अचीव करती है ना, तो शुरू में तो तेजी से बढ़ती है लेकिन बाद में धीमी बढ़ती है ना, तो मॉडिफाइड ग्रोथ मॉडल में कुछ इस तरह का शेप आता है, ठीक है, मॉडिफाइड हो जाता है हमारा मॉडल, ठीक है। तो इनिशियल इसका सॉल्यूशन बताइए क्या है, x इक्वल टू कैपिटल एक्स ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। e टू द पावर माइनस के टी, वेरी गुड। तो अब बताइए इसमें व्हाट इज k, व्हाट इज k, k इज द, बोलिए, इट इज द ग्रोथ रेट और डीके रेट, क्या है ये, सर ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट है, भले ही माइनस टर्म आ रहा है वो तो सोल्यूशन से आ रहा है ना, इनिशियली तो हमने उसे प्लस के करके यूज किया है ना, हमने जो फॉर्मूला बनाया है इनिशियली, x डॉट इज प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स x माइनस x, ये k क्या है, हमने पॉजिटिव लिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो k इज द ग्रोथ रेट, इट इज नॉट द डीके रेट, t इज द टाइम, e इज द एक्सपोनेंशियल एंड कैपिटल X इज द मार्केट लिमिट, कैपिटल X इज द मार्केट लिमिट, ठीक है। ये हमारे 3 मॉडल अच्छे से पढ़ लिए। अब हम आते हैं चौथे मॉडल, तो चलिए मैं जरा सा क्लियर कर लेता हूँ। नाउ फोर्थ मॉडल, सो फोर्थ मॉडल इज, उसका नाम है लॉजिस्टिक मॉडल या लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है, और इसको हम कहते हैं एस शेप्ड कर्व, इसको एस शेप्ड कर्व भी बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्स डॉट जो है वो किसके इक्वल लिया जाता है, इट इज k इंटू x माइनस x, देखो क्या चेंज हुआ, है ना, चेंज को समझना ध्यान से। सबसे पहले x डॉट इक्वल टू के एक्स था, फिर x डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स था, फिर x डॉट इक्वल टू k टाइम्स कैपिटल X माइनस x था, है ना, और अब इस मॉडल पे देखिए अब हो गया है ये चेंज होकर के, है ना, तो जरा देखो यहां पर कैपिटल X का यूज है, वो तो मॉडिफाइड में भी यूज है, ठीक है। अब मॉडिफाइड और लॉजिस्टिक में क्या फर्क है वो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड मॉडिफाइड। तो लॉजिस्टिक में यहां पर x माइनस एक्स के साथ x का भी मल्टीप्लीकेशन है ना, स्मॉल x का भी, स्मॉल x 2 टाइम्स आ गया है ना, उसमें x का भी मल्टीप्लीकेशन है। तो अब इसको हम थोड़ा सा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो, एट द इनिशियल स्टेज जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो एट द इनिशियल स्टेज क्या होता है, इनिशियल स्टेज में ये मॉडल की कंडीशन क्या हो जाएगी, x डॉट इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी बताओ, इनिशियल स्टेज में जो x है वो कैपिटल X के रेस्पेक्ट में काफी छोटा होगा, ठीक है। कैपिटल X क्या है, मार्केट लिमिट, तो मार्केट लिमिट तो एक बड़ी क्वांटिटी है ना, मार्केट लिमिट इज ए बिग क्वांटिटी, और स्मॉल x क्या है, नंबर ऑफ पर्संस हु हैव बाइड द प्रोडक्ट, तो शुरुआत में बाई करने वाले जो लोग होंगे वो काफी कम होंगे मार्केट लिमिट के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो एट द इनिशियल स्टेज दिस कंडीशन इज ट्रू, स्मॉल x इज लेस देन कैपिटल X, मच लेसर देन कैपिटल X। तो इस कंडीशन से हमें क्या चीज निकल के आएगी कि जो डिफरेंस है जब x बहुत ही मच लेसर है तो x माइनस x की जो वैल्यू आएगी वो लगभग x के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि स्मॉल x बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो एट द इनिशियल स्टेज में कैपिटल X माइनस x को हम कैपिटल X लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स लिख सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इस पे ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट है कैपिटल एक्स माइनस एक्स, इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं केवल एक्स, और उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है बिकॉज स्मॉल एक्स इज मच मच लेसर देन एक्स, और इनिशियल स्टेज में ऐसा होगा। तो इनिशियल स्टेज में मॉडल कन्वर्ट हो जाएगा कि एक्स, और इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं कैपिटल एक्स। तो इनिशियल स्टेज पे हमारा मॉडल रिप्रेजेंट करेगा इसको। अब इस मॉडल में के क्या है, ग्रोथ रेट, ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। कैपिटल एक्स क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है, मार्केट लिमिट इज आल्सो कांस्टेंट, ये के भी कांस्टेंट है, तो यहां पे दो कांस्टेंट हो गए। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि वो अनदर कांस्टेंट K1 है ना। तो K1 मतलब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कांस्टेंट। सेकंड कांस्टेंट इज द मार्केट लिमिट। सो आई एम राइटिंग x डॉट इक्वल टू K1 x, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा मॉडल क्या बन गया, K1 x, और ग्रोथ रेट क्या हो गया, K1। नाउ द ग्रोथ रेट इज K1। अब इस मॉडल को आप कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट मॉडल से। बताओ क्या डिफरेंस है फर्स्ट में और इसमें, बताओ। फर्स्ट की इक्वेशन क्या थी, x डॉट इक्वल टू के एक्स, और इसकी भी इक्वेशन क्या आ रही है, x डॉट इक्वल टू K1 x। अब k को K1 लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एट द इनिशियल स्टेज दिस मॉडल इज बिहेविंग लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, है ना। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि एट द इनिशियल स्टेज द मॉडल will behave like exponential growth model, with a new rate constant, with a new growth rate, और उस ग्रोथ रेट की वैल्यू क्या है, K1, या फिर उस ग्रोथ रेट की वैल्यू क्या है, पुराना ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट लिमिट। नया ग्रोथ रेट क्या है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ओल्ड ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट लिमिट, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। मतलब इनिशियल स्टेज पे मॉडल ऐसे बिहेव करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की तरह बिहेव करेगा। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। प्रत्युष क्लियर है? यस सर क्लियर है। गुड, इनिशियल स्टेज हो गया। अब आते हैं थोड़े समय बाद क्या होगा, है ना। थोड़े समय बाद, इनिशियल स्टेज की बात तो हो गई, अब थोड़े समय बाद की बात करते हैं। तो थोड़े समय बाद के लिए मैं अब इसको जरा सा यहाँ क्लियर कर लेता हूं। आफ्टर सम टाइम, दूसरी कंडीशन, ठीक है। मॉडल की डेफिनेशन लिख ले रहा हूं पहले, x डॉट इक्वल टू के एक्स स्मॉल एक्स मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स। दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन फॉर द लॉजिस्टिक मॉडल। तो इसको हमने इनिशियल स्टेज पे चेक कर लिया कि इनिशियल स्टेज पे ये मॉडल बिहेव कर रहा है x डॉट इक्वल टू ए न्यू ग्रोथ रेट, है ना, ए न्यू ग्रोथ रेट K1 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ये भी हमने प्रूफ किया है अब तक। इनिशियल स्टेज ये तो कर चुके हैं हम, इनिशियल। अब इनिशियल के बाद, है ना, कुछ समय बाद क्या कंडीशन बनेगी तो उसको देखना है ना। तो इसका एक सेकंड, इसका जरा सा मान लो हम ऐसे देखें। सो दिस इज द कैपिटल एक्स, इज द मार्केट लिमिट। तो शुरू में तो
ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की तरह बिहेव करेगा, यानी ग्रोथ होती जाएगी, ऐसे ही ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जब कुछ प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, मतलब स्मॉल एक्स अब थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया। इनिशियल स्टेज में स्मॉल एक्स को हमने क्या माना था, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। इनिशियल स्टेज में हमने माना था स्मॉल एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल एक्स, ठीक है। लेकिन आफ्टर ए सर्टेन टाइम, अब वाली कंडीशन तो ट्रू रहेगी नहीं, है ना। तो क्या होगा, अब स्मॉल एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा कि वो लगभग कैपिटल एक्स के आसपास हो जाएगी, ये स्मॉल एक्स की वैल्यू मार्केट लिमिट को रीच करने लग जाएगी, है ना। मार्केट लिमिट से थोड़ा ही कम होगी, जैसे मार्केट लिमिट एक बड़ी वैल्यू थी शुरू में, तो अब स्मॉल एक्स भी एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो वो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स को क्या करेगी, कॉम्पीट करेगी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस x इज इक्वल टू कैपिटल X, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम जो x है वो कैपिटल X के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए हमारे मॉडल में क्या बदलाव होगा, तो देखो x डॉट इक्वल टू k, अब स्मॉल x की जगह क्या लिखा जा सकता है, बताओ। स्मॉल x की जगह क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल X, कैपिटल हाँ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, x इज इक्वल टू x, तो मैंने कर दिया k इंटू कैपिटल X। स्मॉल x को कैपिटल X लिखा जा सकता है क्योंकि वो उसके लगभग बराबर है। अब हमने ब्रैकेट में लिखा, कोई चेंज नहीं किया, x माइनस एक्स, इसको चेंज नहीं किया सेकंड पार्ट को। तो अब इस मॉडल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इस मॉडल को एनालिसिस करिए, ये कैसा मॉडल है। तो एनालिसिस में आप देखो, k क्या था, ग्रोथ रेट, x क्या है, मार्केट लिमिट, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, एक अनदर कांस्टेंट। इन दोनों को मिला के क्या बन गया, एक अनदर कांस्टेंट। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, so it is, let the constant is k2, it is a new constant k2 multiplied by x minus x। अब आप इसको मैच करो कि ये वाला मॉडल किससे मैच खाता है, तो ये मैच खाता है, इट इज मैचिंग, है ना, इट इज मैचिंग और इट इज बिहेविंग लाइक ए, थर्ड वाला मॉडल क्या नाम था, मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। देखो मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की डेफिनेशन आपको याद है क्या थी, अभी आपने, मैं स्लाइड में दिखाता हूं या मैं लिख देता हूं यहां पर। उसकी कंडीशन थी x डॉट इक्वल टू के एक्स माइनस एक्स, है ना, k इंटू एक्स माइनस एक्स, k इंटू एक्स माइनस एक्स। तो एक कांस्टेंट आता है, तो देखिए यहां भी कांस्टेंट आ रहा है k2, k की जगह k2 है, और ब्रैकेट वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स। So at the later stage, the model is behaving like a modified exponential growth model, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया था, कल पूछा भी था उसने, आकाश खटवानी ने, मुझे कराना तो था ही। तो कल मैंने सिर्फ वर्ड्स में बताया था कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मॉडल्स ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल शुरू में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की तरह बिहेव करता है, लेकिन बाद में ये मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की तरह बिहेव करता है। और ऐसे मॉडल्स को हम कहते हैं एस शेप्ड मॉडल और लॉजिस्टिक मॉडल, है ना, क्योंकि ये रियल लाइफ को मैच करते हैं, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो दीज मॉडल्स आर मोस्ट प्रेफर्ड फॉर सॉल्विंग द रियल लाइफ मार्केट प्रॉब्लम्स। तो अब जैसे मान लो किसी सिटी की पॉपुलेशन के बारे में बताइए, क्या पॉपुलेशन पे कौन सा मॉडल ज्यादा फिट बैठेगा इन चारों में से, है ना। तो अब हमने पढ़ तो लिया, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। हमने 4 मॉडल पढ़े हैं, है ना। अब मान लो किसी सिटी की पॉपुलेशन है, सिटी की पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी और ए कंट्री, जो भी है, कंट्री ले लो चाहे सिटी ले लो, जो भी ले लिया। तो अब इस पॉपुलेशन में स्मॉल एक्स क्या हो गया हमारा, पॉपुलेशन,
है ना। मान लो शुरुआत हो रही है, ये प्लेनेट बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो पॉपुलेशन के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा सूट करेगा? मॉडिफाइड मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल सूट करेगा, या एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल सूट करेगा, या फिर मॉडिफाइड वाला, या लॉजिस्टिक वाला? कौन सा सूट करेगा बताओ? आप में से कोई बताइए। सिटी की पॉपुलेशन को के बारे में क्या होगा? सर एक्सपोनेंट पहला वाला सर। पहला वाला, ग्रोथ हाँ। वाला ही लगा तो कौन सा वाला? ग्रोथ सर, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला। कंटिन्यू बढ़ेगी ना सर हाँ, पॉपुलेशन को। कंटिन्यू बढ़ेगी। देखो, सही कह रहे हो आप, लेकिन आप समझो एक बात को, कि शुरू में पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बढ़ने के बाद कोई तो उसकी लिमिट होगी, या इनफाइनाइट हो जाएगी बढ़ के? तो सोचो जरा, कहां तक बढ़ेगी? बढ़ती चली जाएगी, मतलब कोई तो लास्ट लिमिट होगी उसकी, है। मतलब किसी सिटी में क्या इनफाइनाइट लोग रह सकते हैं? सिटी में रहने वाले लोगों की संख्या किस बात पर डिपेंड करती है? सिटी में रहने वाले लोगों की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि उस सिटी में क्या रिसोर्सेस हैं। खाने के लिए अनाज, चावल, दाल, चीनी कुछ है, मतलब फूडिंग फूडिंग पर्याप्त है कि नहीं है ना। वहां की जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन को, ठीक है। तो शुरू में तो पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को ही ट्रीट करेगी, ठीक है। तो इनिशियली देयर आर एम्पल रिसोर्सेस, है ना। शुरू में तो रिसोर्स काफी ज्यादा होंगे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, है ना। सो देयर आर एम्पल रिसोर्सेस टू सपोर्ट द लाइफ, है ना। तो ये कैसे बिहेव करेगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की तरह बिहेव करेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन द रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड, जब रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, तो क्या वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी? बताओ। रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो गए अब, तो फिर वहां की पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आफ्टर व्हेन द रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड, तब फिर ये मॉडल दूसरे मॉडल की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जब हम स्टडी करते हैं सिमुलेशन में, तो हम सिचुएशन देख करके खुद ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सा मॉडल अप्लाई किया जा सकता है ना। यहाँ पे कौन सा मॉडल अप्लाई किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दिस मच ऑफ टाइम दिस मॉडल इज सुटेबल, आफ्टर दैट दिस मॉडल इज सुटेबल, ठीक है। तो पॉपुलेशन को आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस केस में फिर ये कौन सा मॉडल आ जाएगा? लॉजिस्टिक मॉडल ही आ जाएगा। शुरू में बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में लिमिट्स के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाइड उस फॉर्म से यूज हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लीजिए कोई डिजीज है, और वो जैसे कोरोना को ले लीजिए, अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है। ये कोरोना का फैलना के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा सुटेबल रहेगा इन चारों में से? बताओ। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। कोरोना जो स्प्रेड हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा मॉडल है ज्यादा सुटेबल है? और कौन कौन से मॉडल कब कब सुटेबल है? कॉम्बिनेशन भी बता सकते हैं, बताइए आप। इनिशियल स्टेज पे तो सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल था। बिल्कुल, क्योंकि ये तो वो था, मतलब छूने से फैल रहा है ना। तो इनिशियली तो बिल्कुल सर। जितने ज्यादा लोग संपर्क में आएंगे, शुरू में क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कुछ ही लोग कोरोना से संक्रमित थे, है ना। ज्यादातर उसमें कैसे लोग थे? जो फॉरेन से आए थे, या जो लोग फॉरेन वालों के संपर्क में हुए थे। तो इनिशियली वैल्यू आपने देखी होगी कोरोना केसेस की बहुत ही कम थी, है ना। उसके बाद सर उसके बाद इसकी ग्रोथ होती गई, है ना। ग्रोथ होती गई, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इज सुटेबल फॉर दैट, है ना। आपने आरोग्य सेतु ऐप भी देखा होगा, तो वहां पे जो ग्राफ दिखाता है वो कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप का ही आता है ना। फिर क्या हुआ? मतलब ये कोरोना के जो केसेस हैं, मान सर लो वो स्प्रेड हो रहे हैं, तो कोई तो लिमिट होगी, मतलब कभी तो जाके चेंजेस आएंगे। जी सर, फिर थर्ड मॉडल हमारा आएगा, उसमें वर्क करेगा, क्योंकि हमारी एक लिमिट होगी। हम्म। और जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे थे मोदी जी और मतलब जो
हो रहा था कि आप लोग अपने घर पे रहिए तो जिससे कम हो जाए रेट उसका। हाँ, वो प्रिकॉशंस ले रहे थे, है ना? हाँ, तो वो प्रिकॉशंस थे, तो उसको लेने की वजह से कुछ लिमिट बन गई कि हाँ इतने लोग संक्रमित हैं, तो वो तो हमारा मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, वो स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा था, हाँ, जीरो की तरफ होता जा रहा मान लीजिए मोदी जी प्रिकॉशन ना लेते, तो उस केस में क्या होता? था। उस केस में तो सर एक्सपोनेंशियल वाला ही होता ग्रोथ नहीं मॉडल। नहीं 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 नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ। शुरू में मान लो इंडिया पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितने करोड़ है? 135 करोड़ है, कितनी है? 140 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है? तो 140 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। क्या लिमिट है कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की इंडिया में? इंडिया में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 140 करोड़ ही तो हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो पॉपुलेशन ही नहीं है, राइट? सो मार्केट लिमिट इज 140 करोड़, मार्केट लिमिट इज 140। अब आप देखिए शुरू में, लॉजिस्टिक हाँ बिल्कुल अपने आप बनेगा, आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। तो देखो शुरू में तो कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग संपर्क में आएंगे। अभी तो 10 ही लोग संक्रमित हैं, इन 10 के संपर्क में 20 लोग आ गए, फिर उन 20 के संपर्क में 40 लोग आ गए, तो संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद मान लो कि 120 करोड़ लोग संक्रमित हो गए। अब ये 120 करोड़ लोग कितने लोगों के संपर्क में आएंगे? क्या 240 करोड़ लोगों के संपर्क में आएंगे ये लोग? क्या ये 120 करोड़ लोग 500 करोड़ लोगों को संक्रमित करेंगे? 500 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं है, पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है। तो अब ये 120 करोड़ लोग 500 करोड़ लोगों को संक्रमित कर ही नहीं सकते, तो फिर यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल काम नहीं करेगा, है ना? क्योंकि जो कोरोना का जो स्प्रेड है वो एक टाइम पे जाकर के अपने आप दूसरे मॉडल का शेप ले लेगा, ठीक है? तो मैं अपनी बात आपको थोड़ा सा कन्वे कर पाया। तो स्प्रेड ऑफ ए डिजीज भी एक तरह का लॉजिस्टिक मॉडल हो सकता है, और ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सिमुलेट करते हैं, है ना? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यदि आपके एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा, आपके पैरामीटर्स बदल जाएंगे, आपका मॉडल बदल जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं अब स्टॉप शेयर करता हूँ, क्लास का टाइम भी हो गया, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।